डियर व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे या आफियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रादर थ्रो लाइट on an important short story, rather beautiful short story titled The Lost Leaf, written by O. Henry. Dear viewers, before going ahead, let me give you a brief information about O. Henry. O. Henry was a famous American author, a versatile short story writer. He has published and written this short story in 1907 at New York City. Dear viewers, personally this Lost Leaf is my favorite one. ये मेरी पसंदीदा short story है. Dear viewers, this short story revolves around two main characters. इसमें दो main किरदार हैं. Main किरदार. One is Sue and another one is Johnsy. Both are fast friends. Both are female artists. Johnsy and Sue. Dear viewers, both lived. Johnsy and Sue. They shares a studio at the top of a rundown apartment building. सर्दी का मौसम होता है. झांसी कैचेस नमूनिया. झांसी नमूनिया का शिकार हो जाती है. तो उसके फ्रेंड सू डॉक्टर के पास जाता है. डॉक्टर आ जाता है. डॉक्टर उसका चेकअप करता है. तो डॉक्टर when doctor checked her, doctor observed that Johnsy is having only 10% of chances from recovery as she uh, as she had catched pneumonia. तो डॉक्टर जॉन सू से पूछता है कि ये क्या कारण है कि जॉन्सी हैज लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ सर्वाइवल. तो क्या होता है कि उस जॉन्सी जिस रूम में वो बैठे रहते थे, जॉन्सी एंड सू, तो उस रूम के बगल में उस रूम के बगल में उस रूम की खिड़की के साइड में एक दीवार था. वहां एक वाइन ट्री था. उस वाइन ट्री से ऑलमोस्ट एवरी लीव, हर पत्ता, आफ्टर 1 मिनट 2 मिनट गिरता जा रहा था. तो विद द फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द वाइन ट्री, तो ये झांसी ये भी अपनी होश, अपना उसकी हेल्थ पोजीशन डिटोरेट होती जा रही थी. फिर वो सोच रही थी कि विद द पासिंग ऑफ एवरी लीफ her position is going to worse. In fact, some, she got depression. She has lost all hopes. Dear viewers, मैं यहाँ आपको बताते चलो. Disease, depression is chronic than disease. Depression is biggest rather disease. इंसान डिप्रेशन जब इंसान को डिप्रेशन आ जाती है तो वो हर बीमारी में मुब्तला हो जाता है. हमें डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए. ये मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ. We should always sustain our hopes. एज कुरान में भी है कि ना उम्मीदी कुफर है. Dear viewers, when the doctor visits them, he predicts that Johnsy won't have much chance of survival if she does not find the will to live. Since his medicine has little effect on a patient uh, who has decided that she is going to die. When the doctor asks if Johnsy is depressed about something in particular, she mentions Johnsy is unfulfilled, ambitious to paint the Bay of Naples. But the doctor is dismissive and asks if Johnsy is troubled or a man. तो डॉक्टर जॉन्सी सू से पूछता है कि क्या वजह है कि उसने अपनी सारी उम्मीदें खो बैठी है, इसलिए सारी अपनी उम्मीदें खो बैठी है. क्या वजह? तो जॉन्सी सू से कहता है कि जॉन्सी का एक अनफुलफिल्ड ख्वाब था, अनएम्बिशियस अनएम्बिशियस ख्वाब था. दैट इज कि टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, बट दैट गॉट अनफुलफिल्ड.
तो डॉक्टर डिसमिस ही होता है, तो उससे वो मुतमईन नहीं होता है, तो वो अगेन कहता है कि इफ जॉन्सी इज ट्रबल्ड ओवर ए मैन, क्या इसको किसी इंसान से, किसी आदमी से तकलीफ पहुंची हो, जैसे कि किसी के प्यार में पड़ा हो। एंड increasingly fantastic Johnsy becomes obsessed with the leaves falling from the vine outside her window। जो ही पत्ते गिरते गए, उसकी हालत गिरती जा रही थी। her condition went from bad to worse with the falling of each leaf from the wine tree। Her friend, she tried her best to get this foolish idea out of Jansi's mind, but in vain। When one leaf was left on the tree, Jonesy began to prepare herself for the death. Then she thought of a plan to save the life of her friend. When Jonesy was asleep at night, she went to an old painter named Behrman। तो जब लास्ट पता इस ट्री पे गिरता गया, सॉरी, जिस कमरे में रह रहे थे, जैसा कि मैंने आपको कहा, स्यू एंड जॉन्सी, उसके बगल में दीवार था। दीवार के साथ ही एक वाइन ट्री था, उसके ऑलमोस्ट सारे पत्ते गिरते गए, एक ही पत्ता लास्ट लीव था। तो झांसी के दिमाग में ये ख्याल था कि जो जो ही ये लास्ट लीव भी गिर जाएगा, तो शी टू विल डाई। तो क्या हुआ कि जब जॉन्सी जॉन सू को ये एहसास हुआ कि शी हैज लॉस्ट ऑल होप्स, तो शी उसने क्या किया कि उनके डाउन में, पहली वाली स्टोरी में, जहाँ पे ऊपर स्टोरी में शी वेंट डाउनवर्ड्स, तो उसने वहाँ एक पेंटर, ओल्ड मैन पेंटर रहता था। उसका नाम था बहरमैन, एंड ओल्ड एंड बहरमैन की क्या स्टोरी थी। देयर हियर वाज ए ट्विस्ट इन टेल। शी दिस बहरमैन वाज ए अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट who after decades of failures still hopes to paint his masterpiece। उसका एक ख्वाब था कि बहरमैन का, उसने सारी जिंदगी में कोई अच्छी अच्छी पेंटिंग नहीं बनाई थी। उसका ख्वाब था कि मैं एक मास्टरपीस ऑफ पेंटिंग बनाऊं। बट व्हाट हैपन, जब इसकी झांसी की हालत खराब हुई, तो जब सू उसके पास चला गया, तो उसने उसको बुलाया, तो उसको ये सारी स्टोरी बताई। विद द रिजल्ट, व्हेन ही हियर्स अबाउट द व्हेन ही हियर्स अबाउट द झांसी illness and her obsession with the leaves outside her window, he is initially contemptuous of the idea that leaves could have anything to do with John's health। तो जब उसने ये स्टोरी सुनी, तो उसको ये उसने वो उससे क्या वो she got disrespected कि लीव से भी उसके जिंदगी में कोई असर होता। ये जब बहरमान को लगा क्या इससे क्या उससे क्या असर होगा इसकी जिंदगी में, जॉन सी की। अल्टीमेटली हाउएवर ब्राह्मण सेज आउट ऑफ स्टेज आउट ऑल द नाइट। तो क्या हुआ कि जब नाइट अप्रोच कर रही थी, बारिश बरस रही थी, तो दिस ओल्ड मैन, अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट, नेमली बहरमैन, तो उसने क्या किया कि उसने अपनी वो पेंटिंग के वो मार्कर, पेंट वगैरह, वो खिड़की से नीचे, स्टेयर से नीचे गया, और उस दीवार पे जहां वो लास्ट लीफ भी गिर गया था अल्टीमेटली इन द मिडनाइट, तो उसने एक ब्यूटीफुल लीफ बनाया। वो दिखने में एक रियल था, दिखने में रियल लगता था, बट रियल नहीं था, क्योंकि उसने वो उसकी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उसने इस तरह से बनाई कि जो भी इंसान उसे देखता था, तो ये वो सोचता था कि ये रियल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। जब सवेरे मॉर्निंग हुई, तो जॉन्सी को लगा कि अब लीव भी गिर गया होगा, तो मेरा भी अब अंतिम संस्कार होने जा रहा है। तो उसने पर्दे को, कर्टन्स को साइड में, जॉन स्यू ने कर्टन्स को साइड में किया, तो उन्होंने देखा कि वहां एक ब्यूटीफुल पत्ता
मौजूद हैं जो ज्यादा ग्रीनिश लग रहा था। तो उसके मन में एक उम्मीद सी जा गई कि इतना होने के बाद भी ये लीव नहीं गिर गया। इनफैक्ट वो रियल लीव नहीं था, वो बहरमान बहरमान ने बनाया था। तो क्या इससे क्या हुआ कि इसकी झांसी के जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जाग जाग उठी कि उसको जब जो उसके में जिंदगी बचने की उम्मीद की किरण जब जाग उठी, तो उसकी पोजीशन विद द रिजल्ट फ्रॉम वर्स टू गुड हो गई। वहां से पहले बैड टू वर्स, अब वर्स से गुड हो गई। बट दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द पेंटिंग मेड बाय बहनमैन। एंड विद द रिजल्ट जब डॉक्टर अब वहां पहुंचे तो उसने उसने ऑब्जर्व किया कि जॉन्सी इज रिकवरिंग। तो वहां उन्होंने देखा कि एन ओल्ड मैन बहरमैन कि वो दूसरे कमरे में था। उसने सर्दी, जैसे कि मैंने अब वो कहा कि रात के अंधेरे में उसने एक वो पेंटिंग बनाई थी। दैट वाज हिज मास्टर पीस ऑफ पेंटिंग। तो उसकी पोजीशन जब उन्होंने देखी तो उसकी पोजीशन बैड खराब होती जा रही, वो भी नमूनिया का शिकार हो गया था। यहाँ से झांसी रिकवर करने लगी, वहां से बहरमैन की पोजीशन खराब होती जा रही थी। तो उन्होंने उसको हॉस्पिटल लिया, हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद आफ्टर फ्यू डेज शी डाइड। सॉरी, this old man died. When, although he died, but he his last hope, that last ambitious got fulfilled by painting a masterpiece of painting. By his painting, this John C's life uh, changed. She survived because of the old Bahman's painting. तो यहाँ से इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि वी शुड नॉट लॉस्ट आवर होप। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।